morning, students. This is my second video on rural development, and I'm explaining this in continuation with the first video where we studied the non-institutional sources of credit. Here I'm starting with the institutional sources of credit. Institutional sources of credit are those sources which are through a proper channel. They are given certain rules and regulations. In this, we include the commercial banks, the regional rural banks, cooperative credit societies, and self help groups. Commercial banks provide loan for all agricultural purposes for short, medium, and long term. Now, before this, let us understand what do we mean by short term, why do a farmer needs loan for short term, why for long term, and why for medium term. For short term credit, for short term loans are taken basically for purchase of input like seeds, fertilizers, pesticides, for making payments of electricity bills, etc. These loans are generally raised for a period between 6 to 12 months. Then we come to regional, then let us understand medium term credit. Medium term credit are taken for the purchase of machinery, construction fences, digging the wells. They are for a period between 12 months to 5 years. And long term credit is when they are purchasing additional land or carrying out permanent improvements on the existing land. These loans are for a period of 5 to 20 years. If we look at it, we can divide the different credit requirement of the farmer into productive and unproductive. The productive requirement of credit relates to the production capacity. The unproductive requirement relates to the consumption. So whenever the farmer is taking loan for productive activity, it is always favorable than your non-productive activity. In this, we first took the commercial banks, then there are certain regional rural banks. In every area, we have regional rural banks. They are opened up where there are no banking facilities. अब काफ़ी छोटे छोटे गाँवों में तो जा कर के अंदर कमर्शियल बैंक की यूनिट्स नहीं खोल सकते हैं, तो छोटे छोटे एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे वो रीजनल रूरल बैंक्स चलते हैं और उनका एम क्या होता है, वो प्रोवाइड क्रेडिट टू स्मॉल फार्मर्स फॉर स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम. तीसरी चीज़ होती है उनकी कोऑपरेटिव सोसाइटी. जो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी आपका इंश्योर करते हैं टाइमली एंड रैपिड फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द फार्मर्स, और ये लोअर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट होते हैं. इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर फार्मर्स जो हैं एक सोसाइटी बना लेते हैं मिल करके और उसके थ्रू वो लोन रेज करते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करते हैं. एक लेटेस्ट कंसेप्ट आपका चला है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का, जैसे SHG कहते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस पर आपका प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छा बनता है. तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, ये जो सारे हैं, ये लोन इनका कलेक्शन जो है वो होता है, लोग छोटे छोटे अपनी सेविंग्स देते हैं, हर मेंबर देता है, और ये जो लोग छोटे छोटे फार्मर्स जो होते हैं, इनकी अपनी आपस में जो नीड होती है उसके हिसाब से ये लोन दे देते हैं और ले लेते हैं, और लो रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं. अब ये जो सारा का सारा सिस्टम है, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होता है, इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नाबार्ड. नाबार्ड जो है वो सेटअप किया गया था. दिस इज़ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. और मेन एम जो नाबार्ड का था कि एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो पॉलिसी प्लानिंग और उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो है वो काम कर सके. इसमें स्पेशली जो था कि किस तरह से हम ये जो क्रेडिट फैसिलिटी है फार्मर्स तक हम पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हम जितना एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट करते हैं, सपोजिंग हमने डेवलपमेंट किया, टेक्नोलॉजी हमने बहुत कुछ साइंटिस्ट ने हमारे निकाला, लेकिन अल्टीमेटली किसके पास जाएगा, ये फार्मर के पास जाएगा. और जब तक ये फार्मर के पास नहीं जाता है तब तक जो है आपका कुछ भी जो है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट नहीं हो सकता, ये फार्मर्स का डेवलपमेंट नहीं हो सकता. फिर ये कोऑर्डिनेट करता है डिफरेंट क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस के लेवल पे, और अंडरटेक करता है मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम टाइम टू टाइम. एपेक्स बैंक होता है इसका. कमर्शियल बैंक has instructed banks to make short-term and medium-term and long-term loans available to farmers. Kisan credit cards are given to farmers. Then they can get short-term loans using these cards. It is difficult for poor farmers to get loans from the banks.
Branches of banks are not there in many villages. The bank demand collateral security. Farmers cannot give that. Therefore, commercial banks are not considered to be a very popular for rural credit. Cooperative societies give loan to farmers at reasonable rate of interest. They do not demand any collateral security. और वो क्या करते हैं, ज़्यादातर वो जो है HYV सीड्स फर्टिलाइजर्स फार्मर्स को देते हैं और वो नए मेथड्स भी सिखाते हैं. अब आ जाइए आप रीजनल रूरल बैंक्स पे. दे आर जॉइंटली सेट बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू मीट द क्रेडिट नीड्स ऑफ रूरल पीपल. शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों लेते हैं. और इसकी मेन चीज़ होती है कि ये जो है आपका जो है विलेज एरियाज़ में होता है. अब आपका लास्ट टॉपिक इसमें आता है नेशनल बैंक फॉर Agriculture and Rural Development, NABARD. It was set up in 1982. The institution provides credit to village people, gets support and help from NABARD. It gives institutions जो होते हैं उनको भी ये क्रेडिट देता है, ट्रेनिंग देता है लोगों को और प्रोजेक्ट्स को वो इवेल्युएट करता है टाइम टू टाइम. सेल्फ हेल्प ग्रुप आपका लेटेस्ट फिनोमेना है. 10-15 जने इकट्ठे हो जाते हैं और बहुत पॉपुलर जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो विमेन का होता है. ईच मेंबर कंट्रीब्यूट्स अ स्मॉल अमाउंट. मेंबर कैन गेट लोन्स फ्रॉम इट. They can find self-employment. Then, what are the achievements? Farmers can adopt new technology. Famines can be avoided. Small-scale units, employment increase and poverty आपकी हो जाती है. लेकिन ये हमारा क्रेडिट सिस्टम फेलियर इसलिए हो जाता है क्योंकि आपने देखा होगा कई बारी जो आपके फार्मर्स हैं वो सुसाइड कर लेते हैं. क्यों? क्योंकि वो जो है नहीं वापस कर पाते. लैंड वगैरह जब वो वापस नहीं कर पाते हैं तो इसके लिए जो है वो सुसाइड कर लेते हैं. रिकवरी ठीक नहीं होती. बैंक्स, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर विलेज पीपल टू गेट क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल सोर्सेज. बैंक्स कोलेट्रल लेते हैं. इन सब के लिए इस सब को चीज़ों को देखते हुए सबसे अच्छी चीज़ इनके लिए क्या होती है? इनके लिए होती है आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप्स.